Hello everyone, welcome to the Special Needs Children podcast. Today, we have an inspiring guest, Sonali, the founder of Urmi Foundation. Urmi is a non-profit organization making a remarkable impact in the lives of children with developmental disabilities, particularly from marginalized communities. Sonali's dedication to empowering these children through education, therapy, and skill building is truly commendable. We are honored to have her with us today. Her journey, challenges, and invaluable insights will undoubtedly inspire and enrich our audience. Thank you so much, Sonali, for agreeing to do this podcast with me. Thanks a lot for coming over. And so, your work at Urmi Foundation is transforming many lives. My first question to you is, what has been your journey? Why did you set up Urmi Foundation? Can you please share with us? First of all, thank you so much for inviting me. And I'm glad to share all the grassroots level problems with you. Please. So, 14 years back, I got a fracture and it was extremely severe. So, I was looking for a maid servant. So, I went inside community. There is this community called Lal Dungar in Chembur, and we've recently shifted to Chembur after marriage. So, I heard something and the door was locked but the windows were open. And I peeped inside. There is this child who was tied with a rope. I still have a picture. And I was surprised, क्यों ऐसे बांध के रखा है किसी ने? So I was like, maybe. Then I went inside, looked for somebody. कोई help करेगा क्या? I was actually looking for a maid. Then way back, I again peeped inside. That poor child was eating her own poop. And that was really a horrible scene to see. So I called the neighbors. And it's a committee, so everybody gathered and we broke the door and, I cleaned her up. The moment we released her, she was running everywhere. She was throwing things, not able to understand instruction. And that was my first encounter with disability. इससे पहले मुझे पता नहीं था कि disability करके कुछ होता है जहाँ पे बच्चा hyper active होता है. There are multiple problems, skill development related, education related, ADL skills related. So that was really shocking when her parents arrived and I asked them कि क्या हुआ है बच्ची को. ये like पता नहीं मैडम, बहुत चंचल बच्ची है, बहुत ही चंचल बच्ची है, सब जगह पे भागती रहती है. Somehow that thing it stayed with me. Next day मैं जल्दी उनके यहाँ पे गई और मैंने बोला हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं. हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद डॉक्टर न्यू सायन हॉस्पिटल में उन्होंने हमें गाइड किया कि आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए. उसका IQ टेस्ट किया, तभी पता चला कि ये ADHD है. फिर कौन से स्कूल में डाले, क्योंकि वो स्कूल में जाती है, स्कूल्स होते हैं नहीं होते इतना भी क्लैरिटी नहीं था. एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव. सो थेरेपी भी एक्सपेंसिव थी और उनको रोज़ स्कूल में लेके जाना आना पॉसिबल था, बट हॉस्पिटल्स भी बहुत दूर है उनके यहाँ से, तो क्या करें. तो हमें तभी पता चला कि BMC इज़ अ ओनली कॉरपोरेशन रनिंग स्पेशल स्कूल्स इन इंडिया. अदरवाइज़ बाकी के स्टेट्स में इंक्लूसिव एजुकेशन चलता है या फिर ज़िला परिषद की सर्व शिक्षा अभियान का डाइट डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी के रिलेटेड इंटरवेंशन प्लान करता है. सो फिर तभी मुझे पता चला चलो इसको BMC में डालते. लेकिन BMC का प्लान था कि 2014 में शायद से हम डिसकंटिन्यू करेंगे, नॉट श्योर. तो मैंने फिर सोचा कि इनके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं. तभी निपिड अभी जो है वहाँ पे जाके NIMH बोलते थे पहले, अभी मैंने वहाँ पे जाके पूछा कि कैसे काम चलता है. तो उन्होंने असेसमेंट सिस्टम्स मुझे दी जो डॉक्टर जयंती नारायण ने डिज़ाइन की थी. और फिर मेरी एक दोस्त और हम कुछ कलीग साथ में आए, हमने असेसमेंट्स कंडक्ट की बच्चों के साथ. So you were a special educator? No, but I audit courses there. They allowed me to do that for 2 years. So what is your background? I've done my master's in political science, diploma in human rights. इससे पहले मैं प्रकाश आमटे के साथ काम करती थी. उसके बाद प्रीति पाटकर जो है फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ मैंने काम किया है. और बाद में मासूम करके एक NGO है जो नाइट स्कूल्स में काम करती है, जिसके थ्रू मुझे एजुकेशनल मॉडल्स किस तरह से बनते हैं उसके बारे में इनपुट्स मिले और गाइडेंस मिला. सो फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण इस तरह रहा है कि ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करें और किस तरह से, और आपका जो एजुकेशन है वो भी उसने भी आपको सपोर्ट किया. लेकिन दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग जो आपने बताया उस बच्चे के बारे में, एंड आई एम श्योर. बट
कितने लोग ये देखते हैं और उसको अनदेखा कर देते हैं या अनसुना कर देते हैं जब हम इस तरह का कुछ भी शोषण देखते हैं या फिर हम इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस भी करते हैं लाइफ में, तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे लिए नहीं है, ये मुझे अफेक्ट नहीं करता, ये और किसी का प्रॉब्लम है। लेकिन आपने ये अपनाया, आपने इसको लिया एज द पर्पस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। हाउ डिड यू गो अहेड, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड उर्मी हैपन? तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले इग्नोरेंस होता है या फिर लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं, मैं अपने आप को सबसे पहले उस कैटेगरी में डालूंगी। मुझे भी ऐसे लगता था, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है, और जिनको जानकारी होते हैं वो लोग बोलते कि ये माइनॉरिटी में है, ये डोमिनेंट बच्चे ऐसे नहीं है ना, तो आप इसको डेरोगेटरी मत लेना। लेकिन ये डेरोगेटरी लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो भी है, बच्चा है, एडल्ट है, उसको समान शिक्षा, समान आरोग्य का अधिकार है, और वो हर किसी को मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं कंटिन्यू कर लूँगी। फिर जैसे आप बता रहे कि किस तरह से शुरुआत की, तो जो असेसमेंट सिस्टम डिज़ाइन थी ऑलरेडी, हमारे बच्चों को जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में रहते हैं उनको सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं था। अदरवाइज कॉग्निटिव स्किल अच्छे थे बच्चों के, कई बार वो अच्छा रिस्पॉन्ड भी करते थे, लेकिन असेसमेंट सिस्टम में ऐसे पैरामीटर्स थे कि बच्चा होटल में जाके इडली ऑर्डर कर सकता है क्या, जो चाहिए बोल सकता है क्या, वो कभी होटल में नहीं गया तो वहाँ फेल ही होने वाला है ना। तो हमने वो असेसमेंट सिस्टम रीडिज़ाइन की पूरी, और हमने ये उर्मी फाउंड करने से पहले मैंने बदलापुर, ठाणे और मुंबई के टोटल 68 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट किए, और तभी मुझे पता चला मोस्ट ऑफ पेरेंट्स एसोसिएशन है या फिर पेड एजुकेशन है, तो ये बच्चों के लिए BMC ही एक ऑप्शन बचता है। तो इसलिए उर्मी फाउंडेशन फाउंड करनी पड़ी, क्योंकि अदरवाइज़ हम लोग BMC के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो फिर एक पूरा साल रिसर्च में गया, असेसमेंट सिस्टम रीडिज़ाइन करने में गया। ये पूरा प्रोजेक्ट फिर हमने 1 साल में चेंबूर के स्कूल में पायलट करके देखा, और फिर उनके साथ रजिस्ट्रेशन किया हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम जो भी फैसिलिटीज़ देते फ्री में देते हैं सबको। तो तब से उर्मी का काम 2012 से शुरू हुआ एज अ ट्रस्ट। तो उर्मी का इम्पैक्ट क्या है? आप कितने बच्चों तक पहुंच पाए हो, किस किस लोकेशन में हो, आपको कौन सपोर्ट करता है कि ये सब आपका ही है? क्या है इन्वॉल्वमेंट लोगों का, क्या है? जब ही उर्मी लॉन्च हुआ, या फिर हमने जो उर्मी का असेसमेंट सिस्टम सब कुछ बनाया, तो तभी और अभी भी बहुत ही लोग ढूंढते हैं या पूछते हैं कि ROI क्या है, या फिर हम जब बच्चों के साथ काम करते तो उनको लगता है कि ये सिर्फ आउटरीच नंबर है, इम्पैक्ट क्या है। तो उनके इम्पैक्ट के डेफिनेशंस थे कि बच्चा MBA बनता है क्या, बच्चा और क्या बनता है क्या। तो ये एम्बिशियस चीज़ थी, तो हमें उसको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आके समझाना पड़ा, और हम ऐसे पार्टनर्स बनाना शुरू किए हमने जो हमारे विजन मिशन को रियलिस्टिक अप्रोच से देखे। फिर हमने थोड़े कॉरपोरेट्स के साथ हमारा फंडिंग आता है। सबसे पहला फंडिंग हमें अनलिमिटेड इंडिया ने दिया, जिन्होंने हमारा चेंबूर और 2-3 स्कूल लॉन्च किए। उसके बाद में ग्रेजुअली हम लोग ने स्कूल बढ़ाते गए हम लोग, जब भी हमारा पहला मॉडल हमने चेंबूर के स्कूल में डाला, और 7 साल के बाद हमने हमारे मॉडल को 8 लोगों के कमेटी के साथ बिठा के डेटा प्रेजेंट करके वैलिडेट किया। वी डिड फ्यू चेंजेस, ट्विक किया थोड़ा, क्योंकि डिसेबिलिटी में इतना हेट्रोजीनियस नंबर, मतलब ये रहता है कैटेगरी बच्चों का कि ये फिक्स सॉल्यूशन है ये बोल नहीं सकते, इसलिए स्कोप रखा अल्ट्रेशन के लिए। लेकिन फिर ये मॉडल वैलिडेट किया। मोस्टली जो हम काम करते हैं, हमारा फोकस ये रहता है कि मॉडल मेडिकल से ज़्यादा सोशल रहे, ताकि वो लो कॉस्ट भी बने, और पेरेंट्स को या कोई भी नॉर्मल आदमी है उसको एक्टिविटीज समझ के वो बच्चे के साथ कर सकता है, और बच्चा उसमें बदलाव दिखा सकता है। ओके। तो आज अगर आप एक दिन के बारे में बता सकेंगे कि एक बच्चा जो उर्मी फाउंडेशन में आता है, उसका डे शेड्यूल क्या होता है, उसको क्या मिलता है? हमारे बच्चे सब मोस्टली कम्युनिटीज़ में सुबह का टाइम बहुत बिजी रहता है, इसलिए सारे स्कूल्स हमारे दोपहर में चलते हैं, क्योंकि पानी भरना है मम्मी को, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ होती है घर पे। तो बच्चा जब उठता है तो ऑब्वियसली जो बच्चों को आइडियल स्किल्स नहीं आता है उनको हम पढ़ाते हैं। ये ज़्यादातर CP बच्चे हैं कि ऑटिस्टिक हैं कि क्या हैं?
किस तरह के डिसेबिलिटीज़ हैं? हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में काम करते हैं। तो ब्लाइंड बच्चे भी हैं, ब्लाइंड एंड डेफ है, या फिर हियरिंग सिर्फ फिजिकल इम्पेयरमेंट है या न्यूरोलॉजिकल है? किस तरह के बच्चे हैं? हमारी कंडीशन ये है कि फिजिकल इम्पेयरमेंट भी होती है, विजुअली चैलेंज, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। बस हम यूडीआईडी कार्ड एंड अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट बच्चे का आईक्यू 70 से नीचे आ रहा है तो बच्चा परमानेंटली डिसेबल मानते हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट में इनरोल होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ। और आपको किस किस तरह से ढूंढ के आते हैं लोग? लोग हमें ढूंढते ही नहीं, हमें लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो ये आप एकदम रिवर्स काम कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? हम डोर टू डोर जाते हैं और हमारे असेसमेंट सिस्टम एक प्राइमरी असेसमेंट सिस्टम है जिससे पता चलता है कि बच्चे में क्या क्या दिक्कतें हैं। हम पेरेंट्स के साथ बैठ के, मम्मी के साथ बैठ के असेसमेंट करते हैं। यही सेम असेसमेंट सिस्टम हमने आंगनवाड़ी के जो सेविका है उनको भी सिखा के रखी है। तो प्राइमरीली जी जब भी उनको पता चलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है वो हमें रेफ़र करती है। फिर वो बच्चा हॉस्पिटल में हम रेफ़र करते हैं आईक्यू टेस्ट के लिए। जब यूडीआईडी कार्ड या आईक्यू टेस्ट आता है फिर उसके बाद हम बच्चे को इनरोल करते हैं। ओके। तो कोई बच्चा या कोई पेरेंट अगर वो जानते नहीं है, जैसे आपने उस बच्चे के बारे में बताया, उनको पहले तो पता ही नहीं रहता कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये मेहनत लेके जाके ढूंढ रहे हैं उस बच्चे को, फिर आप पेरेंट्स के साथ आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आप ये सब करो, क्योंकि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में उनका रोज का अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो पगार नहीं कमा सकते, राइट? फाइनेंशियली उनको बहुत तकलीफ रहती है। फिर आप उनको असिस्ट करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। वो असेसमेंट होता है, आपने असेसमेंट पैरामीटर्स भी ड्रॉ किए हैं टू सूट द एग्जैक्ट नीड ऑफ द पॉपुलेशन, एंड देन आप उनको एक रेगुलर प्रोग्राम देते हैं जहाँ पर वो रोज बच्चा, अभी आपने बोला सुबह का टाइम बिजी रहता है, फिर वो सेंटर में आते हैं। आपके कितने सेंटर्स हैं? हम सेंटर टोटल 10 सेंटर है, उसमें से 5 अभी काम कर रहे हैं, 5 हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए बंद है। ये कहाँ पर है? ये मुंबई में ही है? मुंबई में ही है, मुंबई सबर्ब्स में है। मुंबई में ऐसे स्लम्स है जहाँ पर अगर हमें बच्चा, हम डोर टू डोर जाते हैं, रेफरल्स आता है, टेस्टिंग होता है। अगर 300 से ज़्यादा या 400 से ज़्यादा बच्चे डिसेबल है और स्कूल के बाहर है, वहाँ पे उर्मी का सेंटर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे ज़रूरत है। तो अभी हमारा सेंटर एंटॉप हिल, धारावी, वाशीनाका, पंतनगर, सोनापुर, भांडुप साइड में है, उसके बाद में गोवंडी बैगनवाड़ी में है, कुर्ला कुरेश नगर में है। ऐसे 10 अलग अलग जगह पर है और यही सेंटर से कनेक्टेड हमारे बीएमसी के स्कूल्स है। विचार यही रहा था कि जब बच्चा छोटा है और कुछ कर नहीं पा रहा और बीएमसी में भी टॉयलेट ट्रेन बच्चे नहीं लेते कई बार, तो जब वो अच्छा बन जाए या एक जो टॉयलेट ट्रेन नहीं है उनको नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं और क्योंकि वो टॉयलेट्स इंक्लूसिव भी नहीं है और कई जगह पे बीएमसी के कई सारे स्कूल्स है जहाँ पर सेरिब्रल पॉल्सी बच्चा जा नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे रैंप नहीं है या लिफ्ट भी नहीं है और स्टेयर से बड़ा व्हीलचेयर लेके जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर इसलिए कम्युनिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे। बीएमसी को छोड़कर भी कम्युनिटी में भी कई सारी चीज़ें बच्चे को एक्सेसिबल नहीं होती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडिक्वेट नहीं होता है। तो ये कम्युनिटी सेंटर्स जो आपने बोले, वो कौन निर्माण करता है, कौन बनाता है? हम ही जगह रेंट से लेते हैं, वहाँ पे हमारा मटेरियल चीज़ें, सारी चीज़ें डालते हैं और पेरेंट्स की एक मीटिंग होती है जिसमें हम हमारा प्लान बोलते हैं। सो टिपिकली FACP के हिसाब से ही होता है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग रहती है। उसमें पर्सनल, सोशल, रिक्रिएशनल, प्री वोकेशनल, एकेडमिक के जो एरियाज़ है, इन शॉर्ट हम लोग बच्चों को बात करना सिखाते हैं, ADL स्किल्स सिखाते हैं, फाउंडेशन पढ़ाते हैं थोड़ा एकेडमिक्स का ताकि आगे जाके वो स्कूल में जाए और बिहेवियर मैनेजमेंट पे भी काम चलता है। तो ये किस तरह से चलता है ये आसान शब्दों में हम माँ या फिर उनके फैमिली को भी कई बार जाके बताना पड़ता है। फिर बच्चे हमारे सुबह से सेंटर में आते हैं, उनका एक टाइम टेबल बनता है कि कितने बजे कौन क्या करेगा, लेकिन कई बार ये टाइम टेबल हम खुद फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सेंटर में। जितना डिसिप्लिन BMC में हम मेंटेन कर पाते हैं उतना कम्युनिटी में मेंटेन करना चैलेंजिंग जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि एक टीचर के पास लिटरली 30 बच्चे या 50 बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो उनको सर्कल्स में लेना पड़ता है। तो
फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है कि आज फ्राइडे सैटरडे के दिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम होगा या एडीएल स्किल्स पे काम होगा, मंडे ट्यूसडे हम लोग प्री राइटिंग पे काम करेंगे साथ में, तो अकॉर्डिंगली काम चलता है। तो मिक्स ग्रुप बनता है, कई कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सिटिंग स्पैन सही होते हैं, ताकि एक पीयर लर्निंग से भी बात बन सके और अकेले टीचर पे वो प्रेशर ना आए। इस तरह से उनका दिन चालू होता है। आप कोई ऐसे केस के बारे में बता सकेंगे? केस यानी हम तो एक फैमिली और एक रियल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर उनको उर्मी में आकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये आपको बताने के लिए मुझे लगता है अभी सही टाइम है, क्योंकि मैं खुद इम्पेशेंट होती थी पहले 7 साल, क्योंकि बच्चे बहुत धीरे से पढ़ते हैं। लेकिन 7-8 साल होने के बाद जो बच्चे 18 साल के आगे हमारे पास आगे गए हैं, उनके हर वार्ड ऑफिस में बचत गट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर हुए हैं, और उनके खुद के बैंक अकाउंट है, पैन नंबर्स है, और हर कम्युनिटी में ऐसे 7 अभी तक हम लोग ने बचत गट रजिस्टर किए। वहाँ से कम्युनिटी के छोटे छोटे शॉप्स या छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं कम्युनिटी में, जो बच्चों को सूट होता है वो जॉब उनको दिया गया है और वो इस तरह से कमा रहे हैं। कई सारे बच्चे बाहर भी जाके कमा लेते हैं, जिनके कॉग्निटिव स्किल सही होते हैं या जो चल फिर सकते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन कम्युनिटी में ये एम्प्लॉयमेंट मॉडल है और अभी तक 300 से ज़्यादा बच्चे हमारे एम्प्लॉयड है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको जब उनको ये दिखता है ये चेंज, तो क्या कहते हैं? पेरेंट्स को ऑफ कोर्स खुशी होती है, क्योंकि मुझे याद है एक बार कि हमारी एक पेरेंट थी, हमारा कमाटीपुरा में सेंटर था, तो उसको उठा के लेके गए थे। तो वहाँ पे पुलिस ने हमें पूछा था, ऐसे बच्चे क्या पढ़ते हैं आगे जाके, मतलब डॉक्टर बनते हैं, एमबीए करते हैं, क्या करते हैं? तो मैंने बोला कुछ नहीं, जितना उनका कैपेसिटी है उतना वो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। जिनको नहीं है उनको एब्सोल्युटली संभालना पड़ता है हमें। तो उन्होंने हमें बोला तो आप इनको पढ़ा दे क्यों हो? तो मैंने उनको बोला कि वो सेम सवाल हमें पेरेंट्स भी पूछते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं, क्योंकि ये आगे जाके मुझे बुढ़ापे में संभालने वाला है, मुझे ही उसको संभालना है। मेरे उनके आंखों में ड्रीम्स नहीं है, तो किस तरह से काम करे? तो देखो ऐसा है कि हमने भी पुलिस को पूछा और पेरेंट को भी पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं है ना? फिर भी हम भी आपसे यही सवाल पूछ सकते हैं कि आपको भी क्यों रखे हम लोग ये समाज में, क्योंकि आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो यही उल्टा सवाल हम पूछ लेते हैं उनको। ऑफ कोर्स ये कन्विंस करने में, प्रूव करने में टाइम लगता है, लेकिन जब बच्चा कुछ पढ़ता है या बनता है तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है। और दूसरी बात है कि हमारे कंपल्सन है, जो बच्चा पढ़ता है हमने उसको कंपलसरी बोला है तो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, पानी पट्टी भरेगा, ताकि तेरा कंट्रीब्यूशन तेरे घर में रहना चाहिए। अभी हम राइट टू वोट भी उनको अलाउड है, तो उनको वो भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे वोट करके भी आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये सीक्रेट होता है और हमें आके बोलते हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट किया है। सो आपके और जो प्रोग्राम्स हैं, आप बहुत मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटल्स, पुलिस सबके साथ काम करते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए ना। जी बिल्कुल। हमने पहला काम शुरू किया था स्कूल में, लेकिन हमें वो सफिशेंट नहीं लगा, क्योंकि बच्चा अगर इर्रेगुलर है तो हमें लगता था कि बीमार है इसलिए इर्रेगुलर है। लेकिन जब हमने ज़्यादा पूछताछ की तो पता चला कि मम्मी को मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने को नहीं आता, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो हमने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हिंदी या मराठी में उनको लिख के देना, मेडिसिन कितनी मात्रा में कभी देना है वो लिख के देना शुरू किया, और तब से हम लोग और ज़्यादा इंटेंसली वहाँ पे काम करने लगे। जब हमने पूछताछ की हॉस्पिटल्स में, या फिर अब देखोगे फिर भी कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल सेंसरी फ्रेंडली नहीं है, या फिर ऐसा इंक्लूसिव नहीं है ताकि कोई भी स्पेशल बच्चा वहाँ पे जाके बैठ सके और अपना टर्न आने तक रुके और आगे जाए। इसलिए हम लोग हर फ्राइडे को हॉस्पिटल में उर्मी का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो जाके पेरेंट्स को गाइड करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाना होता है, और ये बड़े बड़े नाम और वो डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या करते हैं ये पेरेंट को पता नहीं होते। तो हम लोग डिपार्टमेंट में किस तरह से जाना है, केस पेपर किस तरह से निकालना है, डॉक्टर क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये लोकल लैंग्वेज में हम उनको ट्रांसलेट करके देते हैं। उसी के टाइम पे हमने ये भी जाना, और मैंने IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के
जस्ट पढ़े कि ये लोग क्या करते हैं। डॉक्टर्स को कई बार हाइपर एक्टिव बच्चा है तो चैलेंज आता है उसको संभालने में, पकड़ने में। मदद कई बार होती है, नहीं होती है, क्योंकि ओपीडी पैक होती है हमेशा। तो इस टाइम पे हाइपर बच्चे को किस तरह से माँ ने और डॉक्टर ने साथ में डायग्नोसिस करना चाहिए, इसके लिए उनको इंटरैक्टिव टूल्स दिए हैं। वहाँ पे काइनेस्थेटिक सैंड रखी है, टॉयज़ रखे हैं, ताकि बच्चा वहाँ पे जाके सेटल हो सके और डायग्नोसिस सही तरीके से हो सके, ताकि जिस बच्चे को स्पीच नहीं है उस टाइम पर भी पेरेंट और डॉक्टर साथ में बच्चे को सही तरह से चेक कर सके और उनको मेडिसिन मिल सके। उसी के साथ बच्चा कई बार मिसिंग हो जाता है, उसको पता नहीं रहता याद, या बात ही करने नहीं आती है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया है सारे पुलिस स्टेशन में। उर्मी के जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है, उस डेटाबेस में फ़ोटो, एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ वो पुलिस के पास दिया है। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है जाना कहाँ है, तो वो डेटाबेस में से फ़ोटो अगर मैच हो रहा है तो वो पुलिस उसको अपने घर छोड़ सकता है। ये फ़िलहाल के लिए हमने सिस्टम डिज़ाइन की है। उसी के साथ में और एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि हमारे बच्चे बात नहीं कर सकते या कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, तो वो सॉफ्ट टारगेट है और उनके ऊपर अत्याचार होने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है। अभी उर्मी के पास कई सारे केसेस है जो कोर्ट में चाले, और कई सारे ऐसे भी केसेस है जो हमें बात करके रखे हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाता है। और हमारे लॉ सिस्टम में ऐसी कोई स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये बच्चे का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो सही हुआ है। प्लस ये सिस्टम बहुत ही धीरे से चलती है, जैसे कि कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए या मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। कई बार बच्चा गंद में पड़ा रहता है तो डीएनए चला जाता है, अगर बाहर निकाल के हम लोग उसको धो लेते हैं तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमारी टीम को ट्रेन करने के लिए ये कुछ टिप्स बताए थे, लेकिन हम कई बार उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट या पुलिस सिस्टम साथ में आके एक सेपरेट सिस्टम हमारे बच्चों के लिए बनाए, स्टैंडर्डाइज, जिससे लॉ या प्रोसेस फास्ट हो सके, डायग्नोसिस सही तरीके से और फास्ट हो सके, और एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हो सके। क्योंकि कई बार वो सिस्टम या फिर वो पूरे केसेस इतने स्लो चलते हैं और कई सालों से चल रहे हैं कि कुछ जस्टिस मिला नहीं है किसी को, और ये सारी प्रोसेस देखे बाकी के लोग भी डीमोटिवेट होते हैं और वो बोलते कि हमें आगे आके कंप्लेंट नहीं करनी है। और इसका एक इम्पैक्ट ऐसे होता है कि जो शोषण करता रहता है हमारे बच्चों के ऊपर, उसको लगता है कि कोई बात नहीं, अभी हम कर सकते हैं, कोई एक्शन तो लेता नहीं है, कोई पुलिस के पास तो जाता नहीं है। लेकिन एक बात हम पुलिस को थैंक यू बोलना चाहते हैं इसमें, कि कई सारे स्पॉट्स है जहाँ पे शोषण होने की पॉसिबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा लगती है, और हम पुलिस को बोलते हैं आप यहाँ पे 2 या 3 बार पेट्रोलिंग रखो या राउंड मार के आ जाओ, तो पुलिस कई बार वो करके आ जाता है ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन इसकी कोई गारंटी ना वो दे सकते हैं ना हम दे सकते। मुझे लगता है ये समाज की ही जिम्मेदारी है अल्टीमेटली कि ऐसे बच्चों का शोषण ना करे, या उनके फैमिलीज़ को कई बार अंधश्रद्धा के वजह से बाजू में रखा जाता है, या फिर हमेशा 90% मैंने देखा है कि माँ को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे वजह से ये सब चीज़ें हुई है। कई सारे माएँ हमारे पास आती है और बोलती है कि मतलब छोटी छोटी सिस्टम है, उनके घर में उनको सबसे लास्ट खाना मिलता है क्योंकि उसके बच्चे के साथ उसका बच्चा ऐसा है, या फिर हमेशा उसके बच्चे को और मम्मी को कोई सोशल फंक्शन में जाना नहीं होता है। शादी में नहीं जाते ये लोग, बर्थडे पार्टीज़ में नहीं जाते, क्योंकि वो उनको इनवाइट करना सही नहीं लगता है कई लोगों को। तो ये समाज ने अपना दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए, और ये कंटेजियस चीज़ है, ऐसे सब बहुत सारे लोगों को लगता है, जो बिल्कुल भी गलत है। इसके बारे में पढ़े लिखे लोगों ने भी सोच समझ के काम करना चाहिए। आप ये सब कर रहे हैं और इसमें आई थिंक आप मदर्स के लिए भी कुछ स्पेशल कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है होनहार माँ। तो होनहार माँ में हम ऐसे माँ लोगों को पकड़ते हैं और ट्रेन करते हैं जो अपने बच्चे का आइडियल स्किल्स डेवलप कर सके, उसको बात करना सिखा सके। उसी के साथ ऐसे भी माएँ हमारे पास है जो लीडर बन के खड़ी हो सके, क्योंकि जब ये लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और कहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पे उर्मी के टीचर हर बार पहुँच नहीं सकती, तो माँ को ही इस तरह से एम्पावर किया जाता है कि वो जाके अपनी बात रख सके, या फिर एक दूसरे को गाइड या मदद कर सके। एक दूसरे के साथ ये लोग रिसेंटली पिकनिक जाके आए, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में ये लोग खुशी ढूंढना सीख गया। लेकिन बड़ी अचीवमेंट होनहार माँ की यही रहेगी कि प्रोजेक्ट को एक सस्टेनेबिलिटी मिलती है उससे। हमारे सेंटर में कई सारे बच्चे हमेशा टीचर के पास होते थे, वो अभी ग्रेजुअली माँ के पास कन्वर्ट हो गए हैं।
जिसके वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम सिर्फ एजुकेशन पे काम कर सकते हैं। एडीएल स्किल्स पे, स्पीच डेवलपमेंट पे या बिहेवियर मैनेजमेंट पे माँ बहुत अच्छी तरीके से काम करना सीख जाती है। पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए हम उनको ये चीज़ नहीं बताते, बट अदरवाइज़ माएँ सीख लेती है ये। और हर सेंटर से ऐसी एक 20-25 माएँ तैयार है जो और भी कोई माँ आ जाए तो उसको ट्रेन कर सकती है, सिखा सकती है, या फिर एक कोपिंग के लिए मदद कर सकती है नई माँ को कि जिसको लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ, ये सही हुआ नहीं, क्या लगता है। ये बहुत इमोशनल फेज़ होता है हर माँ के लिए, तो हमने देखा है कई माएँ उनके लिए खड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग दिया है इसमें। वंडरफुल। या तो ये आपने उनको एम्पावर किया है, इसलिए वो माँ आगे जाके दूसरों के लिए भी खड़ी हो सकती है, विच इज़ रियली फैंटास्टिक। ऑन दी अदर साइड सोनाली, अभी ये सब तो अच्छा हो रहा है और आपका इम्पैक्ट दिख रहा है, आप पेरेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। ऑपोजिट साइड में कैसा है, क्या किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कठिनाइयाँ रहेंगी, राइट? जब हम डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो ये बिहेवियर चेंज है और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिसका जेस्टेशन पीरियड कुछ भी हो सकता है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली कॉरपोरेट्स को लगता है कि ये करने के बाद, मतलब चावल खाने के बाद पेट भरना चाहिए, तो ऐसे कई बार नहीं होता है। हम कितनी भी कोशिश करें, कई बार बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार देर से पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हमने किसी को प्रपोजल लिखा था और हमारे पास हर साल 2000 बच्चे आते हैं, उसमें से 300 एम्प्लॉयबल होते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कई बार उतनी भी नहीं मिलती है। तो वो रेशो जब भी उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला नहीं, 100% होगा तो ही ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्दी है, क्योंकि सिर्फ 300 नंबर बहुत कम लगता है उनको। तो हमारे सेक्टर में नंबर बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। तो लेकिन ये किस तरह से हम समझा पाएंगे लोगों को कि ये इतना कठिन है और वो आप कर रहे हो? तो यही दिक्कत आती है, इसलिए हम चाहते कि कोई हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग हमसे जुड़ जाए, जो हमारी मदद करे। जैसे अगर आप अच्छे लॉयर हैं, या आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं, या आप अच्छे टीचर हैं और आपको आके बच्चों को पढ़ाना है, तो अब एक वॉलंटियर बन के बच्चों के साथ आके जुड़ सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे विजन को। टीचर के बारे में बताइए ना कि हर सेंटर में कितने बच्चे हैं? हर सेंटर में 48 to 50 बच्चे रेगुलर आते हैं, लेकिन WHO का रेशियो ये कहता है कि 8 बच्चों के लिए एक टीचर होनी चाहिए। हमारे पास एक टीचर है जो 40 बच्चों को से भी ज़्यादा बच्चों को संभाल रही है, उसी के साथ वो मदर्स को भी गाइड कर रही है, उसी के साथ वो कम्युनिटी में जाके आउटरीच भी कर रही है। तो ये रेशियो ऑलरेडी हमारा ब्रेक हो चुका है, और ये रेशियो सिर्फ उर्मी के कम्युनिटी सेंटर में ही नहीं, BMC में भी ब्रेक हो चुका है। BMC में एक टीचर के पास 15 से 20 बच्चे होते हैं, तो वो रेशियो वहाँ पर भी अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि एनरोलमेंट्स ही ज़्यादा है और लोग सिस्टम में कम हैं। जैसे पहले माइंड्स कॉलेज था, वो अभी बंद पड़ गया, तो प्रोफेशनल्स भी उतने ज़्यादा पास आउट नहीं हो रहे हैं कि जो आगे जाके हमारे ग्रास रूट लेवल में जाके कैटर कर सके ये नीड को। तो ये बड़ा चैलेंज रहा है डिसेबिलिटी सेक्टर में, और ये सेक्टर ह्यूमन सेंट्रिक ज़्यादा है क्योंकि इसमें पर्सनल कनेक्शन से काम ज़्यादा बनती है। हम कोई भी जगह पर इलेक्ट्रिक क्लासरूम लगा के बच्चों पढ़ो करके आके नहीं आ सकते, हमें एक आदमी लगता है या टीचर लगते हैं जाके वहाँ पे काम करने के लिए। तो हम ऐसे कॉरपोरेट्स को ढूंढ रहे हैं जो हमारी मदद करे हमें, क्योंकि मेजर एक्सपेंस उर्मी का टीचर सैलरी और थेरेपी मटेरियल का ज़्यादा होता है, उसी के साथ में कम्युनिटी में रेंट भी ज़्यादा लगता है क्योंकि अच्छी जगह हमें रेंट आउट करनी है जहाँ पे एक इंक्लूसिव अच्छा वातावरण हो, बच्चे को भी सही लगे आने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है हमारा, और यही चैलेंज है रेस करना और लोगों को पूछना। तो हर सेंटर में कितना पैसा लगता है रफली 5 या 6 लाख रुपए हमें लगते हैं हर साल के लिए सेंटर में 48 बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देने के लिए। ओके। और इसके लिए आपको बार बार कॉर्पोरेट्स को पैसा पूछना पड़ता है, आपका फंडिंग कहाँ से आता है? हमारे मेजर फंडर्स विप्रो, ग्लैट या फिर ILNFS इंफ्रा है, लेकिन इनके जो फंडिंग अप्रूवल्स है जो हमें सफिशेंट नहीं है, हमें और डोनेशन की ज़रूरत है जिससे हम
क्वालिटी मैन पावर हायर कर सके जो अपने बच्चों को और सही तरीके से सिखा सके और ज़्यादा टीचर हायर कर सके, क्योंकि एक टीचर का जैसे मैंने रेशियो बनाया उसे हमें ज़्यादा एम्पलीफाई करना है इम्पैक्ट, तो ज़्यादा लोग एंगेज करने पड़ेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत है। तो हम और डोनर्स ढूंढ रहे हैं जो हमारी ये मदद कर सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ आपको कठिनाइयाँ होती हैं क्या? बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने का इम्पैक्ट सिर्फ बच्चे के शिक्षा पर भी नहीं होता है, बच्चे को आगे बढ़ने में भी होता है। पहले हम शिक्षा की बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बीएमसी में और कम्युनिटी में ही बहुत ज़्यादा वीक है। मतलब रास्ते सही नहीं है, टॉयलेट्स भी अच्छे नहीं है, वो इंडियन टॉयलेट्स है। और यहाँ पर और एक बड़ा चैलेंज है कि बॉयज़ और गर्ल्स टॉयलेट अलग होता है कम्युनिटी में। कई बार हमें जाके वो झगड़ा सुलझाना पड़ता है, क्योंकि अगर सिंगल मदर है और उसको मेल है, लड़का है, तो उसको कोई फीमेल टॉयलेट में जाने नहीं देता और मेल टॉयलेट में भी जाने नहीं देता, क्योंकि वो बच्चे के साथ जा नहीं सकती। तो मोहल्ला कमेटी में या फिर उनके यहाँ पे बैठ के ये मीटिंग लेनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है कि इस तरह से उनको सहयोग दे, उनको जो टॉयलेट वो चाहते हैं वहाँ पे जाने का उसको हक होना चाहिए, वो जा सकती है। यहाँ से सॉल्व करना पड़ता है झगड़ा। व्हील चेयर का आता है, या फिर उसी के साथ में कई सारे गार्डन्स आप देखोगे, स्कूल्स देखोगे, तो वो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चे उसको खेल नहीं सकते, हमारे बच्चे रूल्स भी नहीं समझते, इसलिए कोई भी खेल रहा है तो मैंने हमेशा देखा है अभी तक कि बच्चा बाजू में बैठता है और दूसरों को खेलते हुए देखता है। कोई भी उनको मेरे साथ खेलने को आओ ऐसे बुलाता नहीं, क्योंकि उनको रूल्स या सेंस ऑफ कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं रहती, उनको बस खुशी चाहिए होती है और उसके लिए भी समाज तैयार नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं बड़ा होने के बाद क्या होता है। सो अगर बच्चा बड़ा हो गया और उसको बाहर जाना है, ट्रेन में जाना है, बस पकड़ के कहाँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूसिव नहीं है। अगर बच्चा व्हील चेयर लेके बस में नहीं जा सकता या ट्रेन में भी नहीं जा सकता, तो भले उसके कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी जॉब पे नहीं जा सकता पढ़ने के बाद भी। उसका लाइफ अगेन कम्युनिटी में ही है, उधर ही वो कंटिन्यू करेगा। तो ये बड़ा हिंड्रेंस है, इसके लिए काम होना ज़रूरी है। तो ये मेजर चैलेंजेस आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जब हम बच्चों की बात करते हैं या इवन एडल्ट्स की बात करते हैं। तो और उनको हम जब कॉपरेशन देने जाते हैं तो जेंडर इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो इसके ऊपर सीरियसली ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्ट पॉलिसी डिज़ाइन होनी चाहिए। आपने एक और मेंशन किया था कि आपको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो किसके लिए और वहाँ पर क्या अटकता है? हमें लॉयर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चों का जब शोषण होता है तो पालक बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पर वो स्टिग्मा माना जाता है, या फिर स्टिग्मा तो यही माना जाता है कि इसको कोई डिसेबल बच्चा है हमारे पास, ऊपर से उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो बहुत वल्नरेबल रहते हैं बच्चे, उनके ऊपर जब भी कोई शोषण होता है तो ऐसे पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में जाना, कंप्लेन करना बहुत बड़ी बात लगती है। उनको डर लगता है, उनको लगता है कि पुलिस मुझे मदद करेगी या नहीं करेगी, या फिर जिस तरह से करेगी वो प्रोसेस बहुत लेंदी होता है ना, क्योंकि मेडिकल के लिए जाना पड़ता है या आइडेंटिफिकेशन के लिए सेशंस कोर्ट में या फिर जेल में जाना पड़ता है कई बार। और ये इतनी बार किया जाता है कि बच्चा वो पूरे प्रोसेस में थक जाता है। जैसे मैंने बताया 6 साल हो गए, फिर भी हमें वो करना ही पड़ता है। और उसमें कई बार बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, नहीं होता है, वो सही है या नहीं वो भी, उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज रूल्स नहीं है। तो इसलिए हमें लॉयर की ज़रूरत होती है ताकि वो आके हमें लीगल मदद कर सके, सही प्रोसेस समझा सके। जैसे कि अगर बच्चा है और लड़की है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त वहाँ पे लेडी कांस्टेबल ने या फिर कोई फीमेल ने साथ में होना ज़रूरी है, लेकिन ये कायदा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात, और एक कायदा है कि अगर मेरी केस चालू है और पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो हमें CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाके वहाँ पे सोशल वर्कर्स है उनको बताना पड़ता है। वो समन्स जब पुलिस को भेजते तो पुलिस को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो हमें लॉयर समझा सकता है, जिससे लीगल प्रोसेस और फास्ट हो सकती है। इसके लिए हमें लॉयर की ज़रूरत है ताकि ये सारी प्रोसेस एफर्टलेसली सही तरीके से चले और बच्चे को न्याय मिले। और जब आपने मुझे ये भी बताया था कि मेडिकल नीड्स, जैसे सही डॉक्टर के पास जाना या फिर इवन हेल्थ नीड जैसे इनफ न्यूट्रिशन मिलना, ये सब किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? न्यूट्रिशन तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे न्यूट्रिशन सही नहीं है इसलिए सफ़र करते रहते हैं।
कई बार हमें लगता है कि ये चल नहीं सकता है क्योंकि इसको सेरिब्रल पॉल्सी है, लेकिन वो इसलिए भी चलता नहीं है क्योंकि उसमें डी विटामिन की भी कमी होती है, या फिर कई बार प्रोटीन की कमी होती है। कम्युनिटी में बहुत मोनोटोनस ईटिंग हैबिट्स होते हैं, वो बस दाल चावल खाते हैं, मिड डे मील खाते हैं अगर मिलता है तो। लेकिन मिड डे मील का एक सवाल है कि संडे को भूख नहीं लगती है क्या? मिड डे मील मतलब कैसे मिलेगा, स्कूल बंद है तो ये गैप है सिस्टम में। तो इसलिए न्यूट्रिशन इन द सेंस एक हेल्दी डाइट होना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि बच्चे को पूरा खाना खिलाया जाए, लेकिन एटलीस्ट जिसमें प्रोटीन हो, बॉइल्ड एग्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ऐसी सपोर्ट अगर देते हैं तो कई बार बच्चा अच्छी तरह से डेवलप कर पाता है हेल्थ उसकी, और उसमें कई सारे चेंजेस हमें दिखते हैं। तो हमें अगर ऐसा कोई मदद करना चाहता है, सेंटर का पूरा खाना वो भी सही रहेगा, क्योंकि कई बार हम थेरेपी भी करते रहते हैं बच्चों के साथ या आइडियल स्किल्स भी सिखाते हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बच्चा भूखा रहता है। तो भूखा आदमी काम नहीं कर सकता तो बच्चा कैसे पार्टिसिपेट करेगा? या फिर जो भी वो खाता है वो सिर्फ दाल चावल है, या पेट भरने के लिए मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स होते हैं जो बड़ा सा पाव लेके आते हैं, चाय के साथ देते हैं, दिन भर बच्चा उसी पे रहता है और कुछ उसने खाया नहीं रहता है। तो ये भी ख़राब ईटिंग हैबिट्स है जो बच्चे के हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा खाना मिले ताकि बच्चे का फुल पोटेंशियल वो अचीव कर सके। एंड जब उनको कोई कुछ होता है, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ या फिर कहीं कुछ लग गया, या कोविड के टाइम पर कितने बच्चों को भी कोविड हुआ रहेगा, या फिर कोई वायरल अटैक हुआ, तो क्या वो आराम से डॉक्टर के पास जा पाते हैं और कहाँ जाते हैं? जब यहाँ पे और एक गैप है सिस्टम में, जब बहुत बीमार पड़ते हैं या कुछ भी होता है तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स उतने इक्विप नहीं है ताकि उनको मदद कर सके। वो हमेशा बड़े हॉस्पिटल में जाओ करके बोलते हैं। बड़े हॉस्पिटल में बच्चा जाता है, बहुत फीवर आता है उसको, उसके बाद का इमीडिएट स्टेप है कि उसको अकड़ी आती है, एपिलेप्सी अगर है तो। मोस्टली 70% बच्चों को है हमारे यहाँ पे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम। तो उसका फिर MRI CT स्कैन निकालना पड़ता है, जिसका डेट उसको 3 महीने के बाद मिलता है। तब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए अगर कोई डॉक्टर ज्वाइन करना चाहे और ये सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करके दे तो ट्रीटमेंट जल्दी हो सकती है और बच्चा जल्दी सुधार ला सकता है। उर्मी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पिछले 3 सालों में हमने हर साल 44 to 38 बच्चों की डेथ रिकॉर्ड की है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं है। बहुत बुखार आ जाता है तो अकड़े आ जाते हैं, बच्चा ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं ले पाता है। अभी हम लोग ये सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया और उसको लग गया, बहुत खून आ रहा था। सिंपल काम था, उसको स्टिचेस लगाने थे। हम 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गए, किसी को उसको हाथ लगा के बिठाने को नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑटिस्टिक बच्चा था, एक जगह पे बैठ नहीं रहा था, उसको हेड नॉडिंग भी था। तो मना किया डॉक्टर ने उसको संभालने के लिए, कैसे लगाएगा स्टिचेस, ही वाज सो स्कैर्ड। तो उसको फाइनली हम लोग लेके गए राजावाड़ी हॉस्पिटल में, क्योंकि फिर चेंबूर से ऑल द वे घाटकोपर पर जाना पड़ा, और उसके जो स्टिचेस लगाए हैं वो वार्ड बॉय ने लगाए थे। तो मुझे ये सिस्टम में बड़ी गैप दिखती है कि जो क्वालिफाइड आदमी है उसको हैंडल करने को नहीं आता, इसलिए सर्विस नहीं मिल रही है। और कोई जो है जो असिस्टेंट करके या फिर पैरामेडिकल काम कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के तौर पे समझ में आती है। तो मैं ये चाहूँगी कि डॉक्टर्स या कोई भी हो, एक्सपीरियंस आदमी हमारे बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि पेशेंट हमेशा बैठ के आपको डायग्नोसिस करने में सपोर्ट करेगा, यही माइंडसेट लेके लोग उतरे हैं। कई बार ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे अगर अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमारे पास आ जाए जो डाइट को लेके, अच्छे हैबिट्स को लेके सही तरीके से पेरेंट्स को गाइड कर पाए, तो ये डेथ रेट हम कम करना चाहेंगे। So, Sonali, what are the future plans now for उर्मी? आप ये बता पाएंगे, जब से आपने शुरू किया अभी कई साल हो गए ना, कितने साल हो गए हैं आपको? अभी 13 साल हो जाए। 13 साल हो जाएंगे। तो आपका अगर मैं पूछूं कि अगले 5-10 साल में आप क्या करना चाहेंगे, क्या अचीव करना चाहेंगे, और उसके लिए आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ बताएंगे। जी बिल्कुल। अगले 10 सालों में या 5-10 सालों में हम चाहेंगे कि
जो कम्युनिटी में हमारे स्टेक होल्डर्स है या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने एक दूसरे से जुड़ के एक इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर ट्रेन करके रेडी रखना चाहिए, ताकि हर बच्चा वहाँ पे जाए, उसको मदद मिले। कोई बच्चा खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, ये सबसे प्राइमरी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं चाहती हूँ कि एक 3 से 4 हज़ार बच्चे उर्मी पढ़ा पाएगी, और उसमें से एटलीस्ट 50% ही सही बच्चे एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों में उतना पोटेंशियल है, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। मैं यही चाहूँगी कि सारे आंगनवाड़ीज़ और हॉस्पिटल्स है, बीएमसी के जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना बजट बहुत ही ज़्यादा कम करके रखा है, वो थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि लोगों को वहाँ पे आके काम करने में भी इंटरेस्ट है। कई सारे लोग डेफिनेटली रहेंगे जिनको आना है, इस सिस्टम से जुड़ना है और इंक्लूजन के लिए काम करना है। बस बजट थोड़ा ज़्यादा और बढ़ा दे और अच्छे लोगों को वो अपने साथ जुड़ के ले ले, तो हमारा काम और निखर जाएगा, मुझे लगता है। मैं चाहूँगी कि जो भी कॉरपोरेट्स है, जो आरओआई को छोड़ के एक बच्चे के लिए एक इमोशनल या फिर खुशी देने वाले कॉज के लिए कनेक्ट होना चाहते, तो वो ज़रूर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस है, उनको अगर हमारी मदद करनी है तो हम हम खुले हैं, उनको वेलकम करना चाहते हैं, वो आए ज़रूर। और हम डेफिनेटली उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मोबिलाइजेशन करके देना है वो अवेलेबल करके देंगे। बच्चे उनके पास रेगुलरली आके अपना चेकअप करवा सकते हैं। इस तरह से मैं देखती हूँ कि हमारा डेथ रेट रिड्यूस हो जाए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, एजुकेशन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल जाए। और मैं उसी के साथ ये भी चाहती हूँ कि आधार कार्ड या यूडीआईडी कार्ड की जो सिस्टम है, जिसके वजह से बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसे लगता है, क्योंकि कई सारे बच्चों के पास वो है ही नहीं, तो ये स्पेशली हमारे बच्चों के लिए ये सिस्टम थोड़ी फ्लेक्सिबल बना दी जाए, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सोचना ज़रूरी है। उर्मी उनकी डेफिनेटली सहायता करेगी। नेक्स्ट 5 सालों में हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हम पहुँचे, कोई भी सिस्टम के बाहर ना रहे, कोई भी बच्चे को या फिर माँ को भी ऐसा ना लगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता इसलिए वो बाहर है। थैंक यू सो मच उर्मी। आपने इतने अच्छे से, इतने सरलता से ये सब समझाया। बहुत डिफ़िकल्ट है आप जो कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं आपकी जगह स्पेस में जो अनदेखा न करके एक्चुअली सब देख रहे हैं, और उन बच्चों के और उन फैमिलीज़ को अपना समझकर आप आगे उनके लिए इतना सब काम कर रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सबसे कि in whichever way you can support. You just heard Sonali's story, you heard Urmi's story. What can you do? Can you help her in any ways? Are you in a place to volunteer? Are you in a way, in any ways can you support in the actual activities that are happening on ground for Urmi Foundation? We would love that you can reach out. If anybody wants to reach out to you, Sonali, how can they reach out? Where can they read about you? www.urmifoundation.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर हमारे डोनेशन डिटेल्स भी लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेरा खुद का नंबर है। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपको प्लीज़ यही करना है, वेबसाइट में आप क्लिक कर सकते हैं, आप उनके काम के बारे में वहाँ पढ़ सकते हैं, और उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे सोनाली ने बोला वहाँ पर ऑलरेडी है। क्या हम सब जो प्रिविलेज्ड हैं, वो जिनको एब्सोल्युटली ये दूसरी साइड पे हैं, उर्मी फाउंडेशन के बारे में एक बहुत सुंदर फिल्म बनाया गया है टू शो द एक्चुअल डिवाइड इन बॉम्बे, राइट, कि कौन प्रिविलेज्ड है और कौन बिल्कुल प्रिविलेज्ड नहीं है। और हम उस साइड में हैं जहाँ पर हमारे साथ सब कुछ है, फिर भी हम क्रिप करते हैं कि हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने ये आज सुना कि किस तरह से जो एक्चुअल बर्थ राइट है हर बच्चे का, दैट इज़ सेफ्टी फर्स्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ, देयर ओन बॉडी, देयर ओन माइंड, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। फॉरगेट उसके बाद उसको जो एजुकेशन मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो हेल्थ के लिए, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो भी उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और ऐसे संस्थाओं से आप जुड़ सकते हैं
और बहुत ये जो ROI वगैरह है ये छोड़ के, बहुत दूर छोड़ के एक्चुअल इम्पैक्ट हर बच्चे को जो मिलना चाहिए वो अगर उनको मिल गया तो वो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है. और थैंक यू सोनाली फॉर क्लियरली स्टेटिंग दिस आउट एंड वी विश यू ऑल द very best. And please, a huge thanks on behalf of all the parents and all the children for what wonderful work you and your entire team are doing. Thank you. Thank you so much. Thank you.